देखिए, माहौल की गंभीरता को समझते हुए मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ है। सर, ये नेटफ्लिक्स वालों के साथ काम करके कैसा लगा सर? मतलब कैसा लगा सर? मतलब ये अच्छे अच्छे लोग हैं मतलब सर? जस्ट ये क्यूरियस, जस्ट क्यूरियस सर। ये क्या है, जैसे मैंने कहा, पूरी जिंदगी एक बड़े केस का वेट कर रही थी मैं। ये है वो बड़ा केस फॉर मी। नो बट रियली ऑन अ सीरियस नोट, एक होता है ना इतने सालों के बाद, आप देखो लॉन्चेस, हम लोग सब पहले मुहूर्त देखते थे, मुहूर्त फिर प्रीमियर्स, स्लोली स्लोली वो फेज हट गया धीरे धीरे। मैं उधर बैठी थी एंड जब ये सब चल रहा था ना एंड सबके फोटोज आ रहे थे और ये सब, आई वाज गेटिंग ओवरवेल्म्ड and thank you for such a beautiful honor. Thank you. It was actually, I felt honored to be associated with this team. Everybody here on the Munch and everybody there in London also. जो हमारा एक पार्ट, आप भी हमारा मिसिंग है। एक दोस्त लंदन में बैठा है, and everybody out here, really I am honored tonight to be amongst all of y'all. Seriously, thank you so much. तो ये वो बड़ा केस आपको फाइनली मिल गया आशुतोष। Hi, Ravina, on your left. I'm two in the dark. All right. Just give Firstly, me your name. congratulations. It's an amazing trailer. So Thank you. hats off to everyone on the stage. My question to you is, how much could you relate to your character of Kasturi? Honestly, like I said, when I heard Kasturi Dogra's character, I think it is a story and the entire persona and the dilemma that she goes through at every point in her life, because she's this fiercely independent, super talented, brainy, brawny cop, and is waiting for that opportunity to excel in her life, where she's surrounded by all her male counterparts, and yet the full prioritizing of her life, her family life, her husband, her children, her in-laws, and the very fact that she wants to achieve in her career, which she passionately loves, being a cop. She's always wanted to be a cop. And the way we women juggle our careers, our lives, our emotional support that we get from home or we don't get from home, our priorities that are our children, our in-laws, our family, is what completely attracted me to her character, because I think a lot of women can identify with that, and especially all our women in uniform. It is so important to get that kind of emotional support backing, because the job that they do, being a cop, is not only something that is physically taxing, it is mentally taxing. There's so much pressure on them to try and excel, to try and, get across, get some clues, solve a case. The media is after them, people are after them. And this is what her life is all about. So it's something that I might not identify, because I might be one of those few lucky ones who's had constant emotional support from her family, whether it was my parents, my husband, my children, to go out there and achieve and do my best in my chosen career. But there are so many women out there, so many Kasturi Dogras, who are not lucky enough to get that kind of emotional support. And that is what makes this character so beautifully strong for me, against all odds. This is Faridoon Shahryar from Bollywood Hungama. Ravina, yeah, on your left. All right, Hi, so you're Faridoon, looking how are you? stunning, first of all. Thank you. I've not seen you in a long time. Good to see you again. Ji. Belated happy birthday to you. We're almost a month now. Okay, so एक जनरल कंसेंसस ये है कि टिप टिप बरसा पानी को रिक्रिएट करना रवीना टंडन के बगैर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. And on that note comes the promo of Aranyak. जो one thing that I personally felt as a viewer is that level of hunger that is there in your performance, at least from the promo that we can gauge. So can we say that this is a fresh start in a way? This is Ravina Tandon 2.0? Sir, I appreciate the question, but we will all appreciate if you could just only talk about Aranyak only, and we'll probably take that part That's of the the build-up. yeah, That is the build-up in the sense that on that note. He was just complimenting. Yeah, on that note. Yeah. Public सब जानती है. सर वो क्या ना, उन्होंने खर्चा कर रखा है इसमें कान में, तो वो क्या करते रहते हैं बोल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो
पहला फिल्म में डेब्यू था पत्थर के फूल, दैट वाज 1991, दैट वाज विद सिप्पी फिल्म्स. अब मेरा OTT डेब्यू जो है, लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, 2021 is again with Sippy Films. So this is again for me in my life another landmark, which 1991 Patthar Ke Phool give me 30 years of me still being in front of y'all and y'all tolerating me. So I'm hoping that 2021 again will be maybe another 30 years of y'all still tolerating me. And the joke is this: in those 30 years, we both I've aged the 60 years, and she looks the same as 1991. किसी ने मुझे कहा था कि आप रात को क्या फ्रिज में सोती हैं? Ravina, hi, Justin here from PTI. Hi Justin. Hi. Ravina, with the arrival of giants like Netflix in India, the audience was suddenly exposed to like content from across the world. Compared to back when you started in the day in the 90s to what we are now, you think the audience is more unforgiving today? You think that anything bad or mediocre won't make the cut anymore? I think that has been the rule since ages. So it's not something that is now new to behold. I think it's always been, content has always been king, and that has been proved again and again. It is what I feel. It's not the star or the star face or the star value. It's the characters and the content that makes any show very, very powerful and very gripping to watch. So I am Kasturi Dogra right now, but I could have been in not Raveena Tandon playing this. It could have been anyone else playing that. Kasturi Dogra in itself is so strong that she would reach out to you anyhow, the way it's been shown and the way you just saw. So for me, it's not a thing that, it's mediocre or it's average and let's pass it. I think what is strong or what needs to be today is content and how everyone makes it. Thank you. We have time for one more question. So can we pass on Hi. the microphone? Hi, can I ask? Okay, hi, this is Monica from Hindustan Times. Congratulations, everyone. Raveena, especially to you for your OTT debut. My question is for Ashutosh sir. It is a very intriguing trailer that we just saw, so congratulations for that. What I want to ask you is, every artist, while saying yes for a particular role, considers a lot of factors. So what was it for you? Was it the format, that it's a long format series, or was it your particular role, or maybe your beautiful co-stars next to you? What made you go for Aranyak? मैं बड़ा भाग्यशाली था कि मुझे पहला ही पूरा नरेशन हमारी जो इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं विनय, इन्होंने पूरा तफसील के साथ सीन बाय सीन एक 3 घंटे का पूरा नरेशन उन्होंने मुझे विद जो आपके कैमरे के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके साथ सुनाया था. तो शूटिंग के पहले ही मैंने वो पूरी फिल्म देख ली थी और इसमें जो किरदार था, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं जनरली जब मैं सुनता हूँ और मुझे हिट करती है तो वो कैरेक्टर के नाम होते हैं. तो जब इन्होंने महादेव डोगरा कहा तो वो जो कान में महादेव डोगरा ने जो केमिकल रिएक्शन किया और उसके बाद फिर इन्होंने जो कहानी सुनानी शुरू की और कहानी सुनने के बाद इन्होंने बताया कि इस कहानी को कौन प्रेजेंट कर रहे हैं. बोले ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी, फिर इसके साथ सिप्पी फिल्म्स हैं और इसके साथ सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं. और ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ कि ये कोई ऐसा कंटेंट लेके नहीं आते हैं जिस कंटेंट में कहीं जो दर्शकों के साथ बेईमानी करे. ये दर्शकों की रुचि का, उनके मनोरंजन का और उनकी उन तमाम चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं. और जिस तरीके से विनय मुझे सुना रहे थे तो मुझे लगा
कि मैं किसी चाइनीज़ मम्मी के हवाले पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि वो चाइनीज़ भारतीय माताएं तो पीट के बच्चों को सिखाती हैं, लेकिन चाइनीज़ मम्मियाँ जो होती हैं वो पुचकार पुचकार के बच्चों को उनकी एज पे ले जाती हैं, और एज पे ले जाने के बाद उनसे कुछ और भी करवाती हैं, और करवाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होती, और वो फिर कुछ और करवाती हैं, जिनको आप टाइगर मॉम्स कहते हैं। तो मुझे लगा कि एक एज एन एक्टर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी सीमाओं को जानने की, देखने की, और आशुतोष राणा को मिटाने की। तो और मुझे ये लगा कि ये आदमी आशुतोष राणा को मिटा देगा, क्योंकि आशुतोष राणा जब मिटेगा तभी कहीं महादेव डोगरा खड़ा होगा। तो ये मिटाने की प्रक्रिया थी और मैं मिटाने वाले के साथ जुड़ा, और मैं उस चीज़ का परिणाम है कि आरण्यक जो है, क्योंकि इन्होंने मिटा के, कुछ लोग मिटा के बनाते हैं, तो जैसा मेरे किरदार का नाम है वैसा ही विनय का जो निर्देशकीय कुशलता थी वो विनय की थी। तो इसमें बहुत बहुत, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वही आपके जहन में कायम रहता है, और ये सौभाग्य है कि विनय से पहली बार मेरी मुलाकात हुई और स्क्रिप्ट के साथ हुई, और इन्होंने जिस तरीके से पूरा नरेशन दिया तकरीबन 3-3.25 घंटे, और मैं ज़ब्त था। और फिर जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने कहा मुझे क्या पढ़ना है, अब पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि अब जो है वो आपके दिमाग में क्लियर है, और मैं अपने आप को आपके पास छोड़ने के लिए पूरा का पूरा तैयार हूँ। और वो परिणाम बड़ा सुखद रहा, क्योंकि आरण्यक का जो पूरा अनुभव है, और इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पे आपको क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी बिल्कुल अगेंस्ट थी, फिर कोविड के दौरान आप शूट कर रहे थे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा पालन करना था, आपके पास मतलब एक आप एलियन स्पेस में काम कर रहे थे, और उसमें जब आपको इस किस्म के मीठी किरदार और इस किस्म की मीठी, और ख़ास करके ये मेरा मतलब जो थ्रिलर है ये मुझे बड़े प्रिय हैं। तो सारी की सारी चीज़ें एक साथ थीं, और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि 2021 मेरा नेटफ्लिक्स के साथ शुरू हुआ पगलेट से, और 2021 मेरा नेटफ्लिक्स के साथ ही समापन हो रहा है आरण्यक से। तो ये अद्भुत है कि नेटफ्लिक्स से शुरू होकर आप नेटफ्लिक्स पे समाप्त हो रहे हैं। Thank you very much, everybody. But I would like to add that about Vinay ji. Really, thank you, Vinay ji. I have to say, इनके नाम पे मत जाना, but actually question mark है इनके नाम में भी. Vinay, why cool? उस नाम पे मत जाइएगा, कूल तो हटा दीजिएगा। टाइगर मॉम वॉज द करेक्ट नेम वी कैन गिव ऑल ऑफ हिम, बट जैसे कि आशुतोष जी ने अभी कहा कि इन्होंने आशुतोष राणा को मिटा के, दैट इज़ व्हाट आई मेंट विथ माय प्रीवियस आंसर एक्चुअली, बट आई शुड हैव गिवन विनय क्रेडिट फॉर दैट, कि रवीना टंडन नहीं, कोई और भी हो सकती थी कस्तूरी डोगरा, लेकिन वो कस्तूरी डोगरा इतनी पावरफुल है जिन्होंने, जो मैं सिर्फ विनय जी नहीं बट आई से चारू ऑल्सो, रोहन ऑल्सो, एंड एवरी वंस कॉन्ट्रीब्यूशन to make Kasturi Dogra what Kasturi Dogra is and what you will see on the 10th of December. चारू, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसको ये मत समझिएगा, मैं पहली बार इनसे मिला हूँ, लेकिन भैया तुम आपके लिखे हुए एक एक शब्द को बड़ी शिद्दत के साथ बोला है, कसम से तुम। हाँ, seriously, हम ही were not allowed to मैं आज change. मिला इनसे चारू जी। अभी, और जब मैं मिला और एक शिष्टाचारवश हमने नमस्कार किया तो सबको लगा कि जैसे मैं और चारू बड़े पुराने दोस्त हैं। अब इसमें ये हमारी भी अपनी फितरत है कि मैं अपरिचय में भी सुपरिचय की मुस्कुराहट देता हूँ। और फिर मैंने पूछा मेघना से और जाकिर भाई से, मैंने कहा ये कौन है? तो बोले तुम नहीं जानते? मैंने कहा नहीं जानता। तो बोले अपराध है ये। तो मैंने कहा भाई मुझे बताइए तो कितना बड़ा अपराध है? बोले ये तो चारू हैं, यही तो हैं जिन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। और मैंने तुरंत इनसे क्षमा मांगी और मैंने कहा भैया अगली बार जब कलम चलाओ तो कृपा करके इस नाचीज़ को याद रखना, और कसम है कि तुम्हारे एक एक शब्द को मैं उतना ही सम्मान दूंगा जितना तुम अपना लिखते समय देते हो। हम सब चारू जी। थैंक यू वेरी मच। आशुतोष जी, आप जैसे बता रहे थे, आप सब बता रहे थे, बात चैलेंजेस से शुरू हुई थी। जब पहला नरेशन दिया था और आज जो आपने देखा, वो जो जर्नी है उस दिन से लेकर अब तक हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है। क्या वो वैसा ही रहा या उससे बहुत बड़ा बन गया? बहुत मतलब बहुत कमाल का है। और आप जब देखेंगे आरण्य की पूरी कहानी, क्योंकि अरण्य हमेशा से ही रहस्यों का स्थान रहा है,
और अरण्य में रहने वाले आरण्यक उन रहस्यों के सौदागर होते हैं जो उन रहस्यों की गांठें खोलने का काम करते हैं। तो ये रहस्य और रहस्य के जो सौदागर हैं, उनकी जो गांठें हैं, उसको खोलने की जो दास्तान है वो बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने फिल्माई है। और थ्रिलर की सबसे अच्छी खूबी जो टेक्निकल एस्पेक्ट से मैं कहता हूँ, आपने सवाल पूछा था चारू से, और चारू चूंकि शर्मीले हैं, वो लिखने में विश्वास करते हैं, कहने में नहीं करते। हम लोग कहने में विश्वास करते हैं और करने में करते हैं, इसलिए मैं कह देता हूँ। थ्रिलर में क्या होता है कि जब भी थ्रिलर बनाते हैं तो थ्रिलिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो राइटर का होता है, डायरेक्टर का होता है और एडिटर का होता है। लेकिन जैसे ही थ्रिलर सुनते हैं तो हम एक्टर्स जल्दी में रहने लगते हैं और हम इतने भयंकर तेजी के साथ, क्योंकि हम थ्रिल क्रिएट करना चाहते हैं। और वहाँ पे एक समझदार राइटर खड़ा था और वहाँ पे एक समझदार निर्देशक खड़ा था। उसने कहा कि आप क्यों भाग रहे हैं, आप इत्मीनान से रहिए ना, भागने का काम हमारा है, थ्रिल पैदा करने का काम हमारा है, सस्पेंस पैदा करने का काम हमारा है। आपका तो काम यह है कि आप इत्मीनान से उस जगह पे मौजूद रहें। और मैंने इन्हीं के उसमें सीखी ये बात जो मैं आज बता रहा हूँ कि एक्टर हमेशा कोशिश करता है कि उसके शब्द सुनाई दें और सन्नाटे यानी पॉजेस दिखाई दे। लेकिन करते करते मुझे लगा कि आशुतोष, एक्टर के सन्नाटे सुनाई पड़ने चाहिए और शब्द दिखाई पड़ने चाहिए, तब आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो कमाल की निकल के आती है। और ये हुआ कि सन्नाटे आपको दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर आरण्यक में, और शब्द जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो इनके शब्द दिखते हैं और सन्नाटे सुने जाते हैं। तो ये अद्भुत हमारा सफर रहा है। और एक और चीज मैं ये लाइट और उसमें कह दूं कि ये आपने इतना अद्भुत काम कर दिया है। सवाल हमेशा अंधेरे में से आते हैं और जवाब हमेशा प्रकाश की तरफ से जाते हैं। क्या बात है। तो ये बड़ी विचित्र जीवन की स्थिति आपने पैदा की है और हमें सवाल तो सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन सवालदार के चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अन्यथा जब चेहरे दिखाई पड़ते हैं तो सवालों की तासीर सवालों के मुताबिक नहीं, चेहरों के मुताबिक होने लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि सवालों को ईमानदारी से हमने सुना और उसके ईमानदारी से हमने जवाब देने का प्रयास किया। आपने जो सन्नाटों की बात की, तो 10 दिसंबर के लिए हम तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये परिवार इकट्ठा हो गया। मैं गुजारिश ये करूंगा कि एक पारिवारिक तस्वीर हो जाए। सर, मैं तो ट्रेलर देख रहा था, मैं कैसे घुसूंगा उसके अंदर। बहुत अच्छी एक और बात है कि 10 दिसंबर मेरे छोटे बच्चे का जन्मदिन है, तो मैंने उससे कहा कि देखो, नेटफ्लिक्स ने तुमको अपनी तरफ से एक गिफ्ट दी है कि तुम्हारे पिता का काम क्या 10 दिसंबर को दुनिया के सामने आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।